મારું નામ ભાવના પટેલ છે, સેટેલાઇટથી આવું છું. વાઇબ્રન્ટ ઇન્ડિયામાં પહેલું કામ આપણે એ કરીએ છીએ કે એક લિસ્ટ બનાવીએ છીએ. તમને કહ્યું હશે તમારા લીડરે કહ્યું છે? યસ. તો એક લિસ્ટ બનાવવાનું છે. આપણે આપણા ઘરે જ્યારે પ્રસંગ આવતો હોય સારો કે ખરાબ, ત્યારે આપણે એક લિસ્ટ બનાવીએ છીએ. યસ. શેના માટે બનાવીએ કે એના માટે બનાવીએ છીએ કે કોઈ વસ્તુ કોઈ વ્યક્તિને આપણે ભૂલી ના જઈએ એના માટે, રાઈટ? હા. તો એક લિસ્ટ બનાવવાનું છે. તો કોનું બનાવવાનું છે કે પહેલા જે આપણા રિલેટિવ્સ હોય કે ફ્રેન્ડ્સ હોય, નિયર એન્ડ ડિયર હોય, એ લોકોનું લિસ્ટ બનાવવાનું છે કે એ લોકોને આપણે પહેલો હકથી કહી શકીએ. લિસ્ટ કેવી રીતે બનાવવાનું છે? તો એક આ ફોર્મેટ છે લિસ્ટની. તો પહેલા સિરિયલ નંબર આપો, નેમ लिखो. आप थोड़ा चलिए, लोगों को कीजिए. आप स्पीकर में खाली स्टेज पर खड़े घूमो. इनको आप ट्रेनिंग देना है, आपको सिखाना है, आपको रिलैक्स होके. आप लोग इन्होंने आपको 7,000 रुपए दिए जो मैं आपसे वापस लेने वाला हूँ. टोटल 3 लाख रुपए. घूमो, थोड़ा बताओ. हाँ, अच्छी तरह से एक लेटर की तरह ट्रेनिंग को पूरे. आप इसको कहो मैं ट्रेनर, मैं सेट करो, मैं ट्रेनर हूँ, मैं ट्रेनिंग, मैं सिखा रही हूँ. ये सब मेरे स्टूडेंट हैं. एक ऐसे लीडर की तरह. પહેલા તો સિરિયલ નંબર લખો, પછી નામ લખો, પછી મોબાઈલ નંબર લખો, અને પછી એરિયામાં કે તમે કયા એરિયામાં જઈ રહ્યા છો. એટલા માટે કે તમે જે એરિયામાં જઈ રહ્યા હો તો એ એરિયામાં તમને ખ્યાલ આવે કે અહીંયા આગળ તમારી ફ્રેન્ડ તો છે, પણ એ એરિયામાં મારી કોઈ બીજી પણ ફ્રેન્ડ રહે છે તો એને પણ આપણે કોન્ટેક્ટ કરી શકીએ. એટલા માટે પછી લખો પ્લાન. એ પ્લાન શેના માટે? તમે કઈ તારીખે પ્લાન બતાવવા જઈ રહ્યા છો એ ડેટ લખો. પછી જે ફોલો કે જે તારીખે તમે લખ્યું હોય કે 25 તારીખે હું પ્લાન બતાવવા જવાની છું, તો એના બીજા દિવસે એ વ્યક્તિને ફોલો કરો કે જેથી કરીને આપણે પહેલા તો બહુ જ ભૂલ કરતા હોય છે કે ભાઈ પ્લાન બતાવી દીધો, પછી એને 4 દિવસ કે અઠવાડિયા પહેલા આપણે પછી યાદ જ નથી કરતા, પછી આપણે કહીએ કે ક્લોઝિંગ નથી આવતું. તો આવે એવી રીતે ના આવે. તો જ્યારે પણ પ્લાન લીધો હોય તો એના બીજા દિવસે એને ફોલો કરો અને પછી ક્લોઝિંગ કરો. પ્લાન બતાવો, પછી નાને ના ખ્યાલ આવે તો આપણે ફરી વખત એના મીટિંગ સાથે એક મારા હસબન્ડે પણ સાથે પ્લાન જોવો છે તો આપણે ફરી વખત જઈ શકીએ. હા, એટલે પછી આપણે એમના હસબન્ડ સાથે લઈ જઈ શકીએ. એમના હસબન્ડની સાથે એમને પણ પ્લાન બતાવીએ તો પછી આપણે રિઝલ્ટ મળે. યસ. પછી આપણને એવું એક્સક્યુઝ ના સાંભળવા મળે કે મારા હસબન્ડને પૂછવું પડશે. બરોબર? તો એ રીતે કરીને લિસ્ટ બનાવીએ છીએ. અને પછી લિસ્ટ હવે આપણે લિસ્ટ તો બનાવી લીધું. લિસ્ટ બનાવીને આપણે ફોલો ઇન્વિટેશન તો આપવું પડે ને. આપણે કંપનીની વીઓપી થાય છે બધા જ એરિયામાં, તો ત્યાં આગળ આપણે એને ઇન્વિટેશન આપવું છે. અથવા તો આપણા ઘરે મીટિંગ છે તો એના માટે પણ ઇન્વિટેશન આપવું છે. તો આપણે એને કેવી રીતે ઇન્વિટેશન આપી શકાય? તો આજે ચલો હું એક મારી ફ્રેન્ડ છે એને ઇન્વિટેશન આપવું છે કે ઇવનિંગ કોર્સમાં વીઓપી છે આજે, અને સ્પેશિયલ જીવન સરની એક સરપ્રાઈઝ આપવાના છે ત્યાં આગળ. તો હું એવું વિચારું કે હું મારી ફ્રેન્ડને પણ બોલાવું અને એ પણ આ કંપની સાથે જોડાય. તો એક મારી ફ્રેન્ડ છે રીમા શાહ કરીને, હું એને ફોન કરીશ. આપણે ઇન્વિટેશન આપતા હોઈએ તો હકથી પણ ઇન્વિટેશન આપતા હોઈએ છીએ, પ્લસ કે ભાઈ એક નિયર એન્ડ રિયર તો એને પણ આપતા હોઈએ છીએ. તો મારી બેસ્ટ ફ્રેન્ડ છે રીમા શાહ, તો હું એને ઇન્વિટેશન આપું તો હું શું કરું કે એક ફોન લગાવ્યો મેં મારી ફ્રેન્ડને. હેલો રીમા. હા બોલ ભાવના, કેમ છે? હા બસ મજામાં. શું કરે છે તું આજે? બસ કઈ નહીં, તારા માટે તો તું ક્યાં ત્યાં. अभी तक पूछा ही नहीं आना है और वो तैयार हो. आज हम लोग कई दिनों से मिले नहीं है, तो आज इवनिंग पोस्ट में हम लोग मिल सकते हैं दोपहर में? जा सकते हैं? हाँ श्योर, मैं आ जाऊंगी, लेकिन कितने बजे? 2:30 बजे. अच्छा ठीक है, आई विल ट्राई, मैं जितना जल्दी आ सकती हूँ. ओके, थैंक यू रीमा. इसलिए हमको कुछ बताना नहीं है, सिर्फ उनको बताना है कि हम लोग यहीं पे मिल सकेंगे, ठीक है? और चाय नाश्ता करेंगे और खाना पीना करके वापस आ जाएंगे. तो एक જ વસ્તુ કહેવાય કે તમારે કોઈ આગળ વાત નથી કરવાની, બીજી પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ જ વાત કરવાની છે કે આજે આપણે આ જગ્યાએ મળીએ છીએ. અને બીજું ઇન્વિટેશન એવા લોકોને આપો કે જે નીડ છે રૂપિયાની, એક એનામાં બહુ જ ઓનેસ્ટી છે અને એને કંઈક કરવું છે પણ એને કોઈ સારું પ્લેટફોર્મ નથી મળતું. તો એને એવી વ્યક્તિને તમે નીડ છે, એવી વ્યક્તિને તમે ઇન્વોલ્વ કરો આ બિઝનેસમાં, તો એને પણ તમારા એના ઘરમાં રૂપિયા આવશે તો તમને બ્લેસિંગ મળશે.
યસ, તો એવું કામ કરવાનું છે અને વાઇબ્રન્ટ ઇન્ડિયા એક આપણને બહુ સરસ પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડ્યું છે કે જે વીકલી પે આઉટ એવું કરે છે. એટલે આપણે એવું વિચારીએ કે જેને પણ આપણે આ બિઝનેસમાં લાવીએ છીએ કે આપણે તો સક્સેસ હોઈએ છીએ પણ આપણા જેટલા જ એ લોકોને પણ સક્સેસ લાવી શકીએ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. लिखा ही होगा इनके सारे प्लस पॉइंट और सारे माइनस पॉइंट इन्होंने क्या क्या करते हैं कि लिखा होगा एक ही हाथ से मोबाइल को उनको माइक को यूज उठा के रखा, बिल्कुल हिलाया नहीं, और जब कभी इन्होंने माइक को चेंज भी नहीं किया. ठीक है, इन्होंने ये यूं चलते रहे जब भी चले. ठीक है, देखो ये कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अच्छी बात है, पर ये बनावटी लगता है. ये नर्वस से इसलिए कर रहे हैं, ये कभी किया नहीं है इसलिए, पर एक फ्रीडम के साथ करता है. किसके साथ? आप लोगों ने लिखा नहीं पॉइंट सारे, आपको बताइए. चलो आप ध्यान दीजिए, आपको बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है. तो अभी नेक्स्ट नंबर आया है हमारे नजर सर का. आप लोग लिखना प्लस पॉइंट सारे, ठीक है, और वो सारे अपडेट आपको करने हैं. भगवान करे माइनस पॉइंट ना आए. चलो नमस्कार. मेरा नाम राजेंद्र है, कृष्णा नगर से बिलोंग करता हूँ और इस बिजनेस के अंदर आज से 2 से 2.5 साल, ऐसे 3 साल कह सकते हैं, सर के साथ में इस बिजनेस के अंदर आया. और इस बिजनेस के अंदर आया तब इससे पहले मैं एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था और ऑटो रिक्शा ड्राइविंग करते जब ये कंसेप्ट मेरे पास आया तो दीप्ति मैडम ने मुझे विश्वास दिलाया कि सर आप ये बिजनेस को कर सकते हो. पर कुछ समय मैंने अपने हिसाब से इस बिजनेस को किया. इस बिजनेस के इस प्लान को समझने की जगह सिर्फ ये मेंबर बनाने का काम है और ये लोगों को जोड़ने का काम है, इस प्रकार समझ के इस बिजनेस को कर रहा था, पर मेरे साथ लोग नहीं आ रहे थे. फिर मैंने जैसे भावना मैम ने बताया, जैसे टीम अपना सेट किया, लिस्ट बनाया, इन्वेंशन सीखा, पर उसके बाद भी मुझे पैसा कैसे आ रहा है, मेरी इनकम क्या है, मेरी कंपनी का प्लान क्या है, उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं था. और जब धीरे धीरे इस प्रकार की एक ही एडवांस ट्रेनिंग पहले मैंने भी ली है और कुछ बेसिक्स, जब कंपनी का कोई भी बेसिक ट्रेनिंग होता है तो हर एक बेसिक ट्रेनिंग के अंदर मैं 100% जाता हूँ. और ये जो इनकम है प्लान की वो किस प्रकार से हमें मिल रही है उसके बारे में 100% जानने की कोशिश करता हूँ. जब भी सर कहीं भी कैलकुलेशन दिखाते हैं मैं अपनी बुक या डायरी के अंदर उस चीज को उतारता हूँ और उसके बाद घर जाने के बाद उसको रिवीजन करता हूँ कि यह सच में इस प्रकार से कंपनी पैसे बांट सकती है. तो अपनी कंपनी का सबसे पहला जो इनकम है आप सबको मालूम होगा, रिटेल प्रॉफिट, राइट? कितने लोगों को रिटेल प्रॉफिट के बारे में जानकारी नहीं है? सबको है. मैं पूछ सकता हूँ रिटेल प्रॉफिट के बारे में, फिर ऐसा नहीं होगा बोलो मुझे इसके बारे में मालूम नहीं था. रिटेल प्रॉफिट मतलब क्या? अजय सर मुझे हर्बल का प्रोडक्ट देंगे, अपने बॉक्स में है हर्बल की, अपने पास शॉप, शैम्पू, तेल, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है ना? सर के एक एडवांस ट्रेनिंग में सर ने कहा था कि हमें 100% हमारे हर्बल के प्रोडक्ट, अपनी कंपनी के हर चीज को हमें यूज करना चाहिए. अभी एवरेज 6 महीने पहले अपना एडवांस ट्रेनिंग हुआ था, उसके अंदर ये पॉइंट आप लोगों ने भी लिखा होगा और उसके बाद मैं कम से कम 3 शर्ट ले चुका हूँ. तो इस प्रकार से आप भी इस कंपनी के अंदर से जो फर्स्ट इनकम है रिटेल प्रॉफिट वो अपने खुद के लिए ले सकते हैं. जैसे एग्जांपल की हम बात करते हैं, ये हर्बल का शॉप जिसकी MRP 60 रुपीज है और हमें इस बिजनेस में आने के बाद मिलता है 40 रुपीज. कितने मिलता है? अगर हम इसको 40 रुपीज 200 रुपीज का ये 5 का पैक आता है, हम इसको खरीदते हैं और अगर हम इसको सेल करते हैं, मुझे इस बिजनेस के अंदर मेरे भाई को, मेरी बहन को, किसी को नहीं लेके आना है, पर वो साबुन तो यूज करते हैं ना, तो मैंने उनको सिर्फ साबुन के यूज की जानकारी दी कि भाई इस साबुन से आप गोरे हो सकते हो. देखो वो यूज करेगा तो ही गोरा होगा. मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो सिर्फ एक ही पैकेट के ऊपर काम कर रही है, सिर्फ आयुर्वेदिक के ऊपर, राइट? तो आप उसको बता सकते हो कि भाई तेरे घर के अंदर किसी के घुटने की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो इस प्रकार से अपने इस प्रोडक्ट का हम
उसको जानकारी दे सकते हैं, चाहे वो इस बिजनेस में आवे या नहीं आवे, पर हम उसके घर पे एक अच्छी हेल्प दे सकते हैं। और इसके अंदर रिटेल जो प्रॉफिट है, ये हर्बल का जो प्रोडक्ट है, इस कंपनी के अंदर उसका 1339 रुपया प्राइस है, पर इस बिजनेस में आने के बाद हमें मिलता है सिर्फ 800 रुपीज में। कितने मिलता है? 800। और 800 में हमने लिया, उसको 1300 में नहीं दिया, उसको सिर्फ 1000 रुपए में दिया। ये जो बीच का जो 200 रुपया है, वो क्या है हमारा? क्लियर हुआ रिटेल प्रॉफिट सबको? अगर हमने हर्बल का प्रोडक्ट, शैम्पू, तेल, ऐसा कुछ भी लेकर के किसी को दिया, अगर उसको अच्छा लगता है तो वापस से आपको बोलेगा, इससे आपका जो है रिटेल प्रॉफिट ये आप ले सकते हो, कोई कंपल्सरी नहीं है, आप अपने यूज के लिए इसको ले सकते हो। इसके अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन ना, जिस शर्ट में इस कंपनी के बार-बार खरीदता हूं और बार-बार इसको रिपर्चेस करता हूं। शर्ट्स क्यों लेता हूं? क्योंकि मार्केट से भी अगर हम शर्ट लेते हैं, जैसे मैंने अपने आप के लिए लिए, आप अपने हस्बैंड के लिए, अपने भाई के लिए, किसी के भी लिए चाहो तो वो शर्ट ले सकते हो, राइट? जैसे कल मैंने जो ब्लैक कलर का शर्ट पहना था अपनी कंपनी का ही है, राइट? इस प्रकार से आप भी अपने लिए कुछ भी ले सकते हो। सेकेंड इनकम की बात करते हैं। इस कंपनी का सबसे बड़ा और मेन इनकम है टीम बोनस। टीम बोनस के बारे में किसको जानकारी नहीं है? कोई ऐसा है जो कह सके मुझे टीम बोनस के बारे में जानकारी है पूरी 100%? सीलिंग कैसे लगता है, पूरा कैलकुलेशन है उसके पास? हाथ ऐसा नहीं करेंगे तो किसी को समझ में ही नहीं आएगा। अगर हमें जानकारी नहीं है तो पूरा हाथ खड़ा करना है कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है ना? तो हम टीम बोनस की बात करते हैं। टीम बोनस कैसे मिलता है? हम जब भी इस बिजनेस के अंदर आते हैं और हमारी कंपनी के हिसाब से एक फॉर्म भरते हैं और हम पैसा भरते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में सोचते हैं कि हमने पैसा भर दिया, पर यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं सबने यहाँ से कुछ न कुछ कहीं न कहीं इनकम ली है। मतलब किसी ने भी 1 रुपया भरा नहीं है। इस बिजनेस में आने के बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है, आपने जो पैसा दिया उसकी आपको वस्तु मिल जाती है, और उसके बाद इस बिजनेस के अंदर आपका ग्रोथ करने के लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है। इस बिजनेस को करने के लिए हमें 2 साइड मिलती है। इस बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले हम भगवान को याद करेंगे। ये यहाँ पे दिख रहा है सबको? मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, कोई बात नहीं, तो नीचे लिख देता हूँ। हाँ, सब नोट कर दिया। इस बिजनेस के अंदर हम आ जाते हैं। उसके बाद इस बिजनेस के अंदर हमें जब टीम बोनस की इनकम लेनी है, उसके लिए सबसे पहले हमें फ्रेंचाइजी ओनरशिप बिल्कुल फ्री में मिलती है। और इस बिजनेस के अंदर सबसे पहले फ्रेंचाइजी ओनरशिप मिलने के बाद जो हमें फर्स्ट इनकम मिलती है रिटेल प्रॉफिट, उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। सेकंड इनकम की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हमको बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए 2 साइड मिलती है, फ्रेंचाइजी 1 और फ्रेंचाइजी 2। अभी इस बिजनेस के अंदर हमने, जैसे मैडम ने बोला, लिस्ट बनाया, इनविटेशन किया, लोगों को बुलाया, और उसके बाद हमारे साथ कुछ लोग इस बिजनेस के अंदर एसोसिएट होते हैं। और एसोसिएट होने के बाद हमारे जो सीनियर है, हम जिसके साथ काम कर रहे हैं, जिन्होंने हमें बिजनेस दिखाया है, वो हमारे इस बिजनेस के अंदर ये 2 साइड के ऊपर वर्क करता है। और हमारे थ्रू आने वाला कोई भी बंदा इस प्रकार से आता है, एक फ्रेंचाइजी 1 में आया और एक फ्रेंचाइजी 2 में आया। ये 2 आते ही आपका कितना रुपया बनता है? कितना रुपया मिलेगा आपको? हमें मिलता नहीं है। हमारा बन जाता है 1000 रुपीज, पर हमें मिलेगा नहीं। ये मिलता कब है? जब हमारे साथ या तो हमारे कारण, हमारे सीनियर के कारण, या हमारे डाउनलाइन के लिए कारण कोई भी बंदा आता है, थर्ड पर्सन, वो जैसे ही कोई सी आता है, चाहे वो ए के साइड आवे या बी के साइड आता है, फर्स्ट आपका पेयरिंग बनता है और आपको कितना मिलता है? 1000। क्लियर हो गया? अच्छा, सेकंड बात करेंगे। इस बिजनेस के अंदर आपका कोई थर्ड, यहाँ कोई बी आ गया, ये बी लेके आया है, ठीक है ना? तो अभी आपको कितना मिलेगा? पहले तो मिल चुका है ना 1000। फिर से आपका एक पेयरिंग बना और वापस से आपको कितना मिलेगा? 1000 रुपीज। इस प्रकार से आपकी जोड़ी बढ़ती है और इस प्रकार से आपका ग्रोथ होता है। पहले आप अकेले थे, अब आपका टीम बढ़ता है, आपका काम बढ़ता है और आपके लोग नीचे आते हैं और लोग काम करते हैं और आपको इनकम आता है। समझो इस तरफ आपकी इस प्रकार से कुछ काम चल रहा था। अभी आपकी इस तरफ कितने लोग आए? 1
2 3 4 5 कहीं भी कोई भी किसी के भी कारण आपके फ्रेंचाइजी 1 में आया, वो टोटल फ्रेंचाइजी 1 कहलाएगा और आपके इधर आए 1 2 3 और 4। इस प्रकार से आपके फ्रेंचाइजी में 4 लोग आए। अभी आपके यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 आए, तो आपको कितना मिलेगा? क्लियर हो रहा है? अच्छा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? ठीक है ना? इस प्रकार से अपना काम बढ़ता है। पर कुछ लोग अपने दिमाग लगाते हैं, अपने साथ आए अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, सबके लिए अच्छा सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर ये मेरी बहन है, इसका मैं मेरे पर्सनल 2 डाल के अगर इसका चेक बना दूं तो वो जिंदगी भर बैठ के खाएगी और आपके साथ वो काम नहीं करेगी। तो प्लीज इस प्रकार की कोई गलती ना करें। आपका सीनियर जैसे बोलता है, किसी को भी अगर आपके विश्वास इस बिजनेस में लेके आते हो तो उसका सिर्फ 1 साइड काम करना है, दोनों साइड चला के देना नहीं। ये क्लियर हुआ? ये अपनी कंपनी का सबसे बड़ा और मेन इनकम है, जिसके लिए हमें कंपनी कम से कम कितना देती है? कम से कम 1000। यही प्रेजेंट हो ना? हाँ, तो ऐसा होगा फिर मैं बोलते जा रहा हूँ ऊपर से जा रहा है। प्लीज आप मुझे समझने की कोशिश करना। सबसे कम कितना देती है अपनी कंपनी यहाँ पे वीक का? और जब अपना टीम काम करता है, लोग काम करते हैं, लोगों से लोग आते हैं और हमारे साथ लोग जुड़ते हैं और कम से कम 1000, ज्यादा से ज्यादा कितना देती है? 1 लाख रुपया हमें 1 वीक का मिलता है। और ये 1 वीक का 1 लाख रुपए लेने के लिए आपको कम से कम धीरे धीरे यहाँ पे साल से 1 साल 2 साल लग सकता है। ये सेकंड इनकम की हमने बात करी, इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी का तो पूछ सकते हो, राइट? थर्ड इनकम की और बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं फास्ट ट्रैक बोनस। कोई सवाल है किसी का मैडम टीम बोनस के अंदर? ठीक है, रिटेल प्रॉफिट के सॉरी हम बात कर रहे थे फास्ट ट्रैक बोनस इनकम की। मैडम समझ में आ रहा है ना? फास्ट ट्रैक बोनस इनकम के लिए हमें एडिशनल कुछ नया नहीं करना। चलो एक्चुअली सर मुझे बताना था, उनके लिए ताली बजाएं। कुछ लोग तो नर्वस हो रहे हैं, तो नर्वसनेस दूर करने की बात होती जा रहा है। उसमें क्या ऐसा? मुझे रास्ता ज्यादा नहीं मिल गया, बोला क्यों आया? बोले नर्वस होने की इसलिए। तो बाथरूम में कुछ चीज रखी है क्या? लेडीज और बाथरूम में ऐसा कुछ सुविधा डाला है क्या? तो मुझे बता दो, जेंट्स के बाथरूम में भी लगवा है। हेलो, एक लीडर ऐसे स्टेटमेंट देता ही नहीं है। 1000 लोगों के अंदर नहीं, 1000 लाख लोगों के अंदर स्टेज पे खड़ा हो तो भी उसका जज्बा उनका वो होता है, हल्का नहीं होता है, घबराता नहीं है, मरने के लिए भी तैयार होता है और मारने के लिए भी तैयार है। एक लीडर वो चीज समझ गए? अभी उठ के बार सब लोग मौसम जाने लग गए, मैं क्या गया है? आप लोगों को सुनना। चलो बताओ इनमें से पॉजिटिव किसने कितने लिखा, क्या लिखा? आता तो पॉजिटिव શું લખ્યું રાઈટ સર મારી बताओ। લખ્યું જ નહીં એમ બે ખાલી વાત જ કરું છું હું। તમે શું લખ્યું પોઝિટિવ? વેરી ગુડ। ना लिखा आपने क्या लिखा? पहली नजर में नेगेटिव दिया और पहली नजर में नेगेटिव देखा, बाद में पॉजिटिव देखो। कई बार क्या होता है, तो लड़की कई बार पसंद नहीं आती, पर उसके बाद साथ रहते पता चलता है यार वो ऐसी अच्छी है। हाँ ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप, मैं जो चीज पूछ रहा हूँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं क्या सिखाना चाहता हूँ कि आपको अच्छी चीजें भी देखनी है और बुरी चीजें देखनी है, और अच्छी चीजों को अपने अंदर अपडेट करना है और बुरी चीजें अपने अंदर नहीं आएंगे, ध्यान रखना है। मुझे पता है जिसने लिखा है उसे नहीं पूछो। आप बताइए मेरा पॉजिटिव क्या लिखा है? गुड परसेंटेज। कैसे आपको गुड लगा? अच्छा, आपको अच्छा लगा, ठीक है। और कुछ? अच्छा, माइक चेंज कर रहे थे, बोलिए। ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब क्या है? फॉलोअप किसका है? नहीं वो तो ठीक है, फॉलोअप किसका है? फॉलोअप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कौन करेगा? शॉर्ट में करना है, एकदम अच्छी तरह से परफॉर्म करना है। ये एकदम मेन पंच है जिसका बाकी मैडम का दूसरा पॉइंट है, उन्होंने लिया हुआ है उसकी तैयारी करके। ये बहुत अच्छा तरह से लेके जैसे मैं करता हूँ वैसा करेगा पूरा एक्शन के साथ।
हेलो, आप लोगों ने सीवीडी में देखा तो था ना? आप आए, बिल्कुल। आपने तैयारी की है? देखा फिर आपका फॉलो कैसे करते बताया आपको? तो आपको कैसे पता कि फॉलो कैसे करते हैं? ठीक है, कोशिश कीजिए। चलो ठीक है, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ और आप सब मुझे भी पहली बार देख रहे होंगे। कहीं पे गलती हो जाए तो प्लीज मेरी गलती। हम लोग तो पहली बार आए हैं। मैं तो नई हूँ सर, आप सब तो फैमिली मेंबर हो गए हो। मैं तुम्हारे फैमिली में फर्स्ट टाइम जुड़ रही हूँ। हमारी फैमिली यही थी, आपकी फैमिली। थैंक यू भारती मैम, मुझे यहाँ पे लाने के लिए और फॉलो करने के लिए। हमको क्या करना चाहिए? पहले तो हम लिस्ट बनाते थे, मैम ने बोला वैसे, लेकिन क्या करते हैं कि 2-3 बार वो हमको नहीं मिलते हैं तो हम फिर उसको छोड़ देते हैं। उसको छोड़ो मत, उसको इस हिसाब से उसको समझाओ कि वो तुम्हारे पीछे आए कि इस चीज में क्या है कि ये मुझे बार-बार बुला रहे हैं। आप उसको ऐसे समझाओ कि वो तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हो जाए, तुम्हें समझने के लिए तैयार हो जाए और तुम्हारे साथ वो एक ना जुड़े और 5-10 लोगों को साथ में लेके जुड़े। इस तरह से उसका फॉलो करो कि वो तुम्हारे ऊपर पूरा ट्रस्ट रखे और तुम्हारे प्लान को पूरी अच्छी तरह से समझे और दूसरों को भी समझाने में वो तुम्हारी मदद लेने से पहले वो तुमसे एक बार पूछने आए कि क्या मैम मैं ये सही बोल रही हूँ। इस तरह से अपने लीडर के साथ इस तरह से उसका फॉलो लो तो तुम बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत आगे। थैंक यू। सिखाना आता है? आपका जैसे मैं सिखाता हूँ बोलोगे तो ये इन्होंने बताया ठीक है, कॉन्फिडेंस के लिए ठीक है, पर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं, क्लोजिंग कैसे करते हैं, कौन अच्छी तरह बताता है? आपका पॉइंट है क्या? तो फिर क्यों इस पे उंगली कर रहे हैं? शांति रखो। किसी का पॉइंट है, किसी को लगता है कि वो अच्छी तरह से कर सकता है क्योंकि ये मेन पॉइंट है। क्लोजिंग नहीं करेंगे बाकी सब चीजें फालतू। यदि आप क्लोजिंग नहीं ले सकते हो, क्लोजिंग लेना सिखा नहीं सकते हो, फॉलो करना सिखा नहीं सकते हो, तो बाकी सब किया वो वेस्ट है। कोई है जिसको पॉइंट नहीं मिला, जिसको बोले पूर्वी हमें बेहतर ट्रेनिंग मिली थी। अच्छा आपका है वो, आप कर पाएंगे? आयो गाइस, आपका पॉइंट है क्या? आइए वेलकम। हाँ आप ही बैठिए, आपका आएगा नंबर आएगा। यहाँ से आप सभी लोग नए स्पीकर बन के वापस जाओगे। और कल की बारे बता दो, कल के लिए अभी से दिमाग को घिसना चालू कर देना। कल बहुत फास्ट चलेगा और बहुत सारी नई चीजें आएंगी, बहुत सारी जो अभी आप लोगों ने सोची नहीं होगी। और अभी जो चल रहा है वो आपकी जिंदगी में शायद पहली बार हो रहा है। ऐसा कभी हुआ नहीं होगा आपके साथ कि आप जो लाखों रुपए कमाए उनको सिखा रहे हैं। इसको सिखा रहे हैं जो लाखों कमाए उनको सिखाने का आपको मौका मिला है, उनको ट्रेनिंग देने का मौका मिला है। तो ये मौके को पूरा परफॉर्म करो, कोशिश करो कि मैं इधर जैसे मैंने सिखाया ना स्टेज पे आने से पहले अंदर आपने आपको पंच कर दिया 1 2 3 मैं बेस्ट परफॉर्म करूंगी, मैं बेस्ट कोशिश करूंगी, मैं मेरा 100% दूंगी। ये आप ये मत सोचो कि मैं मुझे कहा है इसलिए सिखाना नहीं है। ये सब मेरे स्टूडेंट हैं, मुझे ये ट्रेनिंग देनी है, ये मेरे लीडर है मेरी टीम के, मुझे ये तैयार करना है। जैसे जीवन से हमने किया ऐसे मुझे इन्हें करना है। ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग। जब हम प्लान समझाते हैं पूरा का पूरा 15 मिनट के बाद जो भी करते बाद में हमारे पास क्या क्या सवाल आते हैं। एक मेन सवाल आता है, चाहे कितना भी हो कोई भी हो, तो एक ही सवाल बोलते हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे पास टाइम है। क्या बोलता है? टाइम।
उसका भी हमें सॉल्यूशन देना है। तो हम क्या बोलेंगे टाइम के बारे में? अगर हमने ये ट्रेनिंग ली होती तो ही हम सॉल्यूशन कर सकते। वो तो बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सुबह में 10 बजे आता हूँ, रात को 10 बजे आता हूँ, कहाँ से टाइम मिलेगा? रविवार में मैं फैमिली के पीछे मुझे टाइम देना पड़ेगा क्या? आपके पास सॉल्यूशन है? तो टाइम के बारे में हमें ये बताना है कि सर टाइम किसी के पास कितने बजे जॉब पर जाते हैं? 10 बजे आते कितने? 7 बजे। कितना सैलरी आपको मिलता है? 18 या 20 25,000 तक और क्या? सर यहाँ एक ये स्मार्ट, अगर यहाँ धीरे धीरे आप हमारे साथ जुड़ जाओगे, हम आपको सिखाएंगे और आपका जो सपना है आज तक पूरा नहीं किया, कितने साल से नौकरी की? 25-30 साल। आपको क्या मिला? आप अपने फैमिली को अच्छी अपने के साथ दे सकते, अपने लड़के को अगर कोई भी मांगा तो आप दे सकते, आप आना बताओगे नहीं कर सकते। लेकिन आज 2-3 साल अगर हमारे साथ काम कर दिया तो आपका कोई भी सपना हम पूरा करेंगे। हम 2 कदम बढ़ेंगे, ये 10 कदम बढ़ेंगे। आपका कोई भी टाइम तो अली रब्बानी के पास मुकेश भाई के पास है, फिर भी वो काम बाहर बिजनेस करते हैं ना, आपने देखा है बहुत होता है। तो वो टाइम निकल सकता है तो हम क्या, हमारे पास टाइम नहीं है, तो टाइम का सॉल्यूशन है। और दूसरा क्या क्वेश्चन है? पैसा तो होता है लेकिन हमारे पास पैसा नहीं, वही बोलता है पैसा से सर पैसा नहीं है इसलिए तो काम करते हैं। आप बड़ी बड़ी बिजनेस मार्केट में गए, बिजनेस करने वाले को देखो सुबह से लेकर शाम तक पैसा लगा रहता है। कोई भी बिजनेस करने में देखो कितना घंटा देते हैं, वहाँ भी कस्टमर की राह देखनी पड़ती है, वहाँ भी टाइम देते हैं और कितना पैसा सकते हैं। इसलिए पैसा नहीं है इसलिए जो काम, ये बड़े बड़े बिजनेस सेलिब्रिटी क्या ये बिजनेस करेंगे? हमारे पास अली रब्बानी बिजनेस करने आएंगे? नहीं, हमको हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास टाइम फ्रीडम लेना है, फाइनेंस फ्रीडम लेनी है, इसलिए तो ये काम करना है, इसलिए बिजनेस करना है। तो पैसों की फाइनेंस फ्रीडम लेनी है तो क्या 4,500 निकाल सकते? अगर भिखारी को भी अगर भीख मांगनी है तो अपने कटोरे में थोड़ी चिल्लत डालनी पड़ती है, बाद में हमें मार्केट में भीख मांगता है तो क्या हम करोड़ों लाखों डॉलर लेने के लिए 4,500 नहीं दे सकते? ऐसा नहीं, इसलिए भी दोस्तों तो थैंक यू। हेलो, अभी मैंने पहले पूछा था ये मैडम कुछ लिखा नहीं, ये मैडम कुछ लिखा नहीं, क्यों लिख नहीं रहे? सब आता है आपको तो लिखोगे तो सीखोगे कैसे? कैसे गलतियों को निकालोगे? कैसे प्लस पॉइंट डालेंगे? गलतियां निकालना सबको आता है परंतु फायदे देखना किसी को नहीं आता है। गलतियां निकालना सबको आता है। होता क्या पता है? यदि किसी और का फैसला सुनाना हो तो वो दुनिया का सबसे बड़ा मजिस्ट्रेट बन जाता है, और कहीं अपनी गलती दिख जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा एडवोकेट बन जाता है। क्या बन जाता है? वकील बन जाता है सबसे बड़ा। इससे अच्छी आर्गुमेंट किसी को नहीं आती, और फैसला लेना हो किसी और के बारे में तो उससे बड़ा मजिस्ट्रेट कोई नहीं। हाँ, समझ में आ रहा है? वो जजमेंट सबसे अच्छा देती। नेक्स्ट, फेयर, कॉन्फिडेंस और एन ग्राफ, इसके बारे में किरण मैडम बताएंगे। आइए। अभी टॉपिक के अलावा कोई बोलेगा तो बजर बच जाएगा, इसी मतलब आपके टॉपिक पे ही आपको बोलना है, क्योंकि किसी और का टॉपिक आप भी बोलो। ध्यान नमस्कार, गुड मॉर्निंग, माय सेल्फ किरण शर्मा, और मैं जो बताने जा रही हूँ मेरा टॉपिक है फेथ, कॉन्फिडेंस एंड एनग्राफ। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कॉन्फिडेंस के बारे में। सबसे पहली बात ये आती है कि सबसे पहले जो लीडर प्लान दिखाने जाता है
उसको कंपनी पे फेथ होना चाहिए और वो फेथ करेगा तो अपनी टीम को भी कंपनी के ऊपर विश्वास दिला पाएगा। 99% लोगों को खुद को ही फेथ नहीं होता है, सामने वाला व्यक्ति जब क्वेश्चन करता है कि कंपनी भाग जाएगी, कंपनी उठ जाएगी, कंपनी पैसा कैसे दे रही है, तो लीडर्स को ही आइडिया नहीं होता है कि वो कंपनी पैसा कहाँ से दे रही है। पता होने के बावजूद